Hello students, I hope you all are fit and fine and must be studying at home. So here I am Aisha Khan with you all so that we can just discuss some topics which will be there for your 10th board exams. So today what we will be discussing students, we will be starting with a new book altogether, that is your supplementary book, and the name of this chapter will be Triumph of Surgery. ठीक है, तो आज नया टॉपिक है from a new book. तो देखो अभी तक what we were doing the chapters from your first flight book, but today we will be starting a new chapter or the first chapter from your book Footprints Without Feet. ठीक है, तो ये न्यू बुक सप्लीमेंट्री का है. अब ये कंफ्यूज मत होना कि भाई फुटप्रिंट्स विदाउट फीट चैप्टर है कि बुक है, दोनों चीजें हैं. बुक का जो नेम है वो भी चैप्टर से ही लिया है. ठीक है, तो इसीलिए बुक का नाम जो है दैट इज फुटप्रिंट्स विदाउट फीट. ठीक, तो ये तो हमारी बुक हो गई. And the first chapter in this book is Triumph of Surgery. Now what is this all about and what chapter is based on? We will be studying this in this chapter or in this session. अब surgery, some kind of operation must have been happened with somebody. So we will be reading out about that surgery, and triumph means victory. तो विक्ट्री ऑफ सर्जरी, क्या जो सर्जरी हुई थी वो विक्ट्री थी या जिसकी सर्जरी हुई थी वो जो सक्सेसफुल हो गई थी सर्जरी. तो एवरीथिंग वी विल स्टडी अबाउट इन दिस चैप्टर. ठीक है, तो ट्रायम्फ मतलब विक्ट्री, विक्ट्री मतलब जीत है ना, सर्जरी की जीत. अब व्हाट इज दिस सर्जरी ऑल अबाउट, सर्जरी हुई किसकी थी, दिस ऑल वी विल कम टू नो व्हेन वी विल बी रीडिंग द चैप्टर. तो देखो फिर इंट्रोडक्शन पार्ट. As you can see in the story, in this first picture, you can see a dog. So basically, the surgery went on with a dog. Okay, there was a surgery which was held on a dog. उसकी surgery हुई थी, and then something became serious, and then finally it became successful. The Triumph of Surgery is basically a story of a dog whose master is very very wealthy. She's a very rich woman and she takes care of her dog like anything. बहुत ज़्यादा उसको pamper करके रखती थी. Everything she used to give her on time, give it on time. But then what happened students, one day this dog, it was putting on weight. बहुत ज़्यादा बल्कि होता जा रहा था. Why? Because this master of this dog, she was treating him very much and she was giving her food again and again. तो क्या हो रहा था, उसको इतनी ज़्यादा डाइट मिलती जा रही थी, and because of this reason he was becoming fat. He was putting on weight and weight, and suddenly what happened, one day he got very serious, बहुत ज़्यादा serious हो गया. तो what happened, this master, she called out the vet immediately. Vet is the doctor of animals. तो उसने बुलाया उसको. She treated, this doctor treated this dog nicely, and then finally he was cured. Okay, वो जब दूसरे dogs के साथ रहा, he was mixed up, he was happy, and finally he recovered from its surgery. तो ये है बेसिकली पूरी स्टोरी. अब जब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे, थोड़ा सा समरी करेंगे, देन वी विल कम टू नो अबाउट द स्टोरी मोर बेटर. तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं. अब नेम ऑफ द डॉग हियर इज ट्रिकी. ठीक है, जिसके ऊपर ये स्टोरी पूरी बेस्ड है, दैट इज ट्रिकी. ठीक, ट्रिकी वॉज अ स्मॉल डॉग एंड वॉज एक्सेसिवली लव्ड बाय हिज मिस्ट्रेस मिसेस पम्फरी. अब ये तो होगी मिस्ट्रेस, जो उसकी मास्टर थी, जो उसकी केयर टेकर थी, वो थी मिसेस पम्फरी, एंड द नेम ऑफ द डॉग हियर इज ट्रिकी. तो दो ही कैरेक्टर्स हैं इसमें बेसिकली, इसी के ही ऊपर है पूरी स्टोरी और उसी की ही सर्जरी हुई थी. तो ट्रिकी इज द नेम ऑफ अ डॉग who's been excessively, हद से ज्यादा उसको पैम्पर कर रखा था उसकी जो मिस्ट्रेस थी, एंड दैट वाज मिसेस पम्फरी. ठीक है, अब देखो फिर. He was greedy and loved food but no exercise. अब क्या था, की पॉइंट्स ही देखते हैं अपन लोग. पूरी स्टोरी तो तुम लोगों ने पढ़ रखी होगी. तो क्या था कि दिस डॉग, ही वाज fond of food. He used to love food like anything, and he used to eat food after certain point of time. थोड़ी थोड़ी देर में उसको खाना चाहिए होता था. बट ही वॉज नॉट फॉन्ड ऑफ डूइंग एक्सरसाइज, फिजिकल वर्कआउट, एक्सरसाइज कुछ भी नहीं करता था. ही वॉज जस्ट ईटिंग एंड ईटिंग. तो as a result he became fat, and Mrs. Pumphrey believed that he became lazy because he suffered from malnutrition. अब जब वो डॉग कंटिन्यूसली खाया जा रहा था एंड ही वाज सफरिंग फ्रॉम समथिंग, एक दिन बीमार हुआ. तो उसकी जो मिस्ट्रेस थी, उसकी जो केयर टेकर थी मिसेस पम्फरी, उसे क्या लगा दैट दिस डॉग इज सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन. माल न्यूट्रिशन मतलब खाने की कमी की वजह से ये जो है बीमार पड़ रहा है. अब खाया जा रहा है तो उसको माल न्यूट्रिशन कैसे हो सकता है,
बट दिस मिसेस पम्फ्री शी वॉज थिंकिंग कि माई डॉग ही इज सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन. ठीक है, लैक ऑफ फूड हम लोग बोल सकते हैं. तो माल न्यूट्रिशन मतलब लैक ऑफ फूड या लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स कह सकते हैं, न्यूट्रिशन कह दो. न्यूट्रिशन हमें किससे मिलेगा? ऑब्वियसली फ्रॉम फूड, है कि नहीं? तो मिसेस पम्फ्री वॉज अ वेल्दी विमेन, शी वॉज रिच विमेन. वेल्दी मतलब शी वॉज हैविंग गुड अमाउंट ऑफ मनी, शी वॉज अ वेल्दी विमेन. शी लव्ड हर डॉग टू मच, बहुत ज्यादा उसकी से वो अटैच थी. शी यूज्ड टू लव हर डॉग वेरी मच. She gave him some little extras between meals to build him up, malt, cod liver oil and a bowl of Horlicks at night. She gave him lot to eat but no exercise. अब जब उसे ये चीज रियलाइज हो गई थी कि my dog he is suffering from malnutrition, she has started giving her more and more food. ज्यादा उसको खाना देने लग गई थी. So she was giving him cod, oil, liver food और बहुत सारी जो डॉग्स फूड होते हैं वो उसको बीच बीच में अपनी मील तो दे ही रही थी, प्लस मील के साथ एक्स्ट्रा खाना देने लग गई थी. एंड शी वॉज गिविंग हिम मोर एंड मोर, बट ही वॉज नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज. अब खाया जाएगा इंसान तो ऑब्वियसली कि ही विल बिकम फैट, है ना? खाओगे तो पूरे टाइम, और अगर हम लोग एक्सरसाइज नहीं करेंगे देन यू विल बिकम फैट. ठीक है, तो सेम थिंग हैपेंड विद दिस डॉग ऑल्सो. ट्रिकी, ही वॉज जस्ट ईटिंग एंड ही वॉज नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज. फिर क्या हुआ? वंस ही बिकेम इल, अब बीमार पड़ गया. ऑब्वियसली इतना ज्यादा खाया जाएगा तो ही बिकेम इल. एंड शी वॉज वरीड एंड मेड अ फ्रैंटिक कॉल टू हैरियट हु वाज अ वेट. अब जैसे ही वो बीमार पड़ा, दिस मिस्ट्रेस मिसेस पम्फ्री, शी गॉट वेरी अफ्रेड, शी गॉट वेरी स्केर्ड एंड शी इमीडिएटली कॉल्ड अ डॉक्टर हु वाज अ वेट ऑफ एनिमल्स एंड इट वाज हिज नेम वाज हैरियट. ठीक है, सो हियर शी कॉल्ड अ वेट मतलब वेटरनरी डॉक्टर who is a doctor for animals. तो she immediately called Harriot for help. Immediately उसको बुलाया जब वो बहुत ज्यादा बीमार होने लग गया. James already had given suggestions regarding Tricky's balanced diet, but she never followed it. अब James जो है, he was also a vet, James Harriot, तो he has already given him the diet plan कि तुम इस डाइट के अकॉर्डिंग इसको फॉलो करवाओ, इसको इस टाइम पे रेगुलर मील्स दो, बट she has not followed that diet plan. Out of which what happened, he got ill because of excessive eating and not because of malnutrition. तो ओवर ईटिंग की वजह से उसकी तबीयत खराब हुई थी, ना कि खाने की कमी की वजह से. ठीक है. Then he was a vet. He was shocked to see Tricky, hugely fat like a bloated sausage with a leg at each corner. अब क्या हो गया था? As you can see in this picture, he was becoming bloated. फूला वासा हो गया था, वो कंटिन्यूसली खाया जा रहा था. तो क्या हो गया था? He was becoming bloated and his legs were looking like sausages. मतलब उसके जो पैर थे ऐसे मोटे मोटे से हो गए थे, उसका फेस जो था पूरा ब्लोटन हो गया था, पूरा अच्छे से फूल गया था. And he has become very fat. ठीक है, तो ब्लोटेड मतलब, ब्लोटेड सॉसेज मतलब बहुत ज्यादा मोटा सा कोई इंसान अगर होता है ना, तो उसके हाथ पैर ऐसे हो गए थे पूरे फूले फूले से. तो ब्लोटेड मीन समबडी वेरी स्वोलन, फूला वसा, है कि नहीं? अगर आप लोग भी कंटिन्यूअसली खाओगे, इट हैपेंस विद एनिमल्स ऑल्सो, ह्यूमंस ऑल्सो. अगर हम लोग कंटिन्यूअसली खाते ही रहेंगे तो क्या होगा? एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली हम लोग वेट जो है वो पुट ऑन कर लेंगे, वी विल बिकम फैट, है ना? कद्दू से हो जाएंगे हम लोग. तो सेम थिंग हैपेंड विद दिस डॉग ऑल्सो एंड ही बिकेम वेरी फैट. He advised her to cut down on the sweet things. अब उसने उसकी बिल्कुल जो मीठी चीजें थी वो पूरी कट कर दी थी, कट आउट कर दी थी कि इसको मीठी चीजें बिल्कुल नहीं देना है. Then what happened? He expected call came within a few days and it happened. अब उसने कॉल एक्सपेक्ट किया था, उसने ऐसा उसको पूरा ट्रीटमेंट बता दिया कि सारी मीठी चीजें भाई बिल्कुल बंद कर दो ये. और फिर वो एक एक्सपेक्ट कर रहा था कॉल कि ये मिसेस जो है पम्फ्री वो उसे कॉल करे और उससे पूछे कि क्या हुआ है, सब चीजें ठीक हुई है या नहीं. तो सेम थिंग हैपेंड. ही वॉज कॉल्ड बाय मिसेस पम्फ्री. अब मिसेस पम्फ्री ने उसे कॉल किया. And Tricky refused to eat. He told her that Tricky needed immediate hospitalization for keeping under observation at his surgery for a fortnight. अब क्या हुआ? उसकी जो तबीयत थी वो ठीक हो नहीं रही थी, तो कंटिन्यूअसली वो बीमार हुए जा रहा था. He was not ready to eat and because of this Mrs. Pumphrey she called him और उसने उससे बोला कि इसको immediate hospitalization की जरूरत है and he needs certain medication. ठीक है. There he gave him no food, no medicine but plenty of water.
अब जब उसे हॉस्पिटलाइज किया, व्हेन ही वाज बीइंग ट्रीटेड, ही वाज नॉट गिवन एनी काइंड ऑफ फूड, बिल्कुल उसका खाना वाना सब कुछ बंद कर दिया था, एंड ही वाज जस्ट गिवन वाटर, पानी ही पानी उसको कंटिन्यूसली दे रहे थे, एंड ही वाज नॉट गिवन एनी काइंड ऑफ फूड. ठीक है. ग्रेजुअली मीन्स स्लोली ही मिक्स्ड अप विद अदर डॉग्स. अब वो वहाँ के जो दूसरे डॉग्स थे जिनका भी ट्रीटमेंट चल रहा था इन हॉस्पिटल, तो ही मिक्स्ड अप विद दोज डॉग्स एंड ही स्टार्टेड प्लेइंग, ही स्टार्टेड टॉकिंग टू देम. तो ग्रेजुअली मतलब स्लोली. ही मिक्स्ड अप विद अदर डॉग्स एंड स्टार्टेड प्लेइंग विद देम. अब क्या हुआ, वो जब हॉस्पिटल में था तो वहाँ पे जो दूसरे डॉग्स थे उसके साथ ही स्टार्टेड मिक्सिंग अप विद देम एंड ही स्टार्टेड प्लेइंग विद देम. उनके साथ खाने लग गया था. ही वाज प्लेइंग, ही वाज मिक्सिंग अप विद देम. ठीक है. He had a lot of exercises and fun at the surgery. अब वो वहाँ पे जाने के बाद पूरा उसका माहौल जो था वो पूरा चेंज हो गया था. He started playing, he started doing exercises and he was having fun at the surgery. ये जो उसका पूरा ट्रीटमेंट चल रहा था बेसिकली, तो वो उसको enjoy कर रहा था. He was getting mixed up with the dogs and he was playing and enjoying. He was completely recovered and transformed into a hard-muscled dog. Finally क्या हुआ, when he was doing the exercising, he was mixing up with the other dogs, so he started doing, he was started becoming fit. तो उसका जो पूरा फिजिक था, he was becoming very hardcore muscled dog and he recovered very faster. Now James Herriot treated the dog without medicine or surgery. अब जेम्स हेरियट जो था, who was a vet, he has not given him any surgery, he has not given him any kind of medication, या उसको हॉस्पिटलाइज तो कर रखा था पर उसको कोई ऐसी मेडिसिन नहीं दी थी. he was just given the treatment कि वो उसके सारे जो दूसरे डॉग्स हैं उसके साथ मिक्सअप हो रहा था, उसको सिर्फ पानी मिल रहा था. he was doing lots of exercises. तो अल्टीमेटली क्या हुआ, वो इन सब चीजों से रिकवर हुआ एंड he has built up a strong muscle body. ठीक है. तो वो पूरा रिकवर हो गया था. She was happy and filled with gratitude. She thanked Herriot and said it was a triumph of surgery. अब now when he became very happy, he became very recovered. So Mrs. Pumphrey, she thanked Herriot, who was a vet, and she just she was feeling very happy on this triumph of surgery, on this victory of surgery, that without any medication, without any medicines, without any treatment, my dog has been recovered and he has become such a strong muscled dog. तो ये basically पूरी triumph of surgery थी Mrs. Pumphrey's dog who is tricky. ठीक है. तो this is basically the introduction or some key points. अब next क्या है, फिर थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं इसको. इंट्रोडक्शन पॉइंट्स हम लोगों ने देख लिए. शी इज द मास्टर मिस्ट्रेस मिसेस पम्फ्री. तो ये तो हो गई मिसेस पम्फ्री. उसका जो डॉग था, ही वाज अ स्मॉल डॉग हुज नेम इज ट्रिकी. ठीक है. छोटा सा डॉग था पर उसको ओवर फीड कर दिया था, इस वजह से वो क्या हो गया था, ब्लोटेड हो गया था, है ना. तो शी वॉज अ रिच एंड इमोशनल लेडी हु हैज अ क्यूट पेट कॉल्ड ट्रिकी. ट्रिकी था उसका नेम एंड ही वॉज वेरी स्मॉल. छोटा सा पपी था बट उसको खिला खिला के क्या कर दिया था, ही बिकेम वेरी फैट. शी लव्ड हिम सो मच दैट शी ओवरफेड हिम. अब वो उसको इतना ज्यादा प्यार करती थी, इतना पैम्पर कर रखा था, दैट शी ओवरफेड हिम, ज्यादा खिला दिया था उसको. ट्रिकी हैड पुट ऑन अ लॉट ऑफ वेट व्हिच मेड हिम लेथार्जिक. अब ट्रिकी खाया जा रहा था तो उसकी वजह से वो क्या होता जा रहा था, लेजी. लेथार्जिक मीन्स लेजी. When Dr. Herriot saw the fat dog like a bloated sausage, he was shocked. उसने देखा कि जब ये एकदम bloated sausage जैसा हो गया है तो he was shocked. और उसने उसी टाइम उसकी सारी चीजें कट आउट कर दी थी. He needed treatment for ailment. For ailment means for a disease which was possible only in hospital. अब उसे जो ट्रीटमेंट की जरूरत थी, उसने क्यों बोला था कि इसको हॉस्पिटलाइज करें. वाई, बिकॉज ही वॉज नोइंग कि जब ये यहाँ पे आएगा तो वो उसका प्रॉपर मेडिकेशन कर सकता है. ही विल गेट मिक्सड अप विद द अदर डॉग्स एंड फाइनली ही विल रिकवर. तो उसने बोला कि इसका जो ट्रीटमेंट है वो मैं हॉस्पिटल में करूंगा. ठीक है. तो एलमेंट मीन्स डिजीज और सम काइंड ऑफ सिकनेस. The doctor knew that Mrs. Pumphrey would not be able to keep the dog on a proper diet. डॉक्टर को ये चीज बहुत अच्छे से पता थी कि मिसेस पम्फ्री जो है इसको बहुत ज्यादा पैम्पर करके रखती है और ये मेरी डाइट के अकॉर्डिंग इसको नहीं रखेगी. दैट्स व्हाई ही सेड कि आई विल डू द ट्रीटमेंट ओनली इन द हॉस्पिटल. When the greedy dog went to the hospital, he had to remain hungry. Even he was slow to approach for food. तो अब अगर
वहां पे उसको खाना नहीं मिलेगा, तब भी वो कुछ चीज किसी से बोल नहीं सकता बिकॉज ही इज न्यू इन द हॉस्पिटल। तो ही रिमेन हंग्री इफ ही विल बी स्लो, अगर वो स्लो रहता तो उसको खाना नहीं मिलता था। तो बिकॉज ऑफ दिस ही हैज टू बिकम एक्टिव, है ना। तो वो एक्टिव होने लग गया था, एक्सरसाइज करने लगा था, मिक्सअप होने लगा था, ठीक है। ही वॉज गिवन फूड एट फिक्स इंटरवल्स। अब वहां पे उसको जो खाना था वो बिल्कुल एक फिक्स इंटरवल्स पे मिलता था, ऐसा नहीं था कि हर कभी उसको खाना दिए जा रहे हैं। तो ही वॉज गेटिंग द फूड ओनली एट फिक्स्ड इंटरवल्स। Soon he shed off a lot of his body weight and became quite active. अब obviously खाना हम लोग टाइम पे अगर खाएंगे, डाइट फॉलो करेंगे, तो we will also become fit and active. तो same thing happened with this dog also. कोई सा मिराकल नहीं किया था जेम्स हैरियट ने, उसने उसकी सिर्फ मील को कंट्रोल किया था, डाइट कंट्रोल की थी, एक्सरसाइज उसकी थोड़ी सी स्टार्ट कर दी थी, और इन सब रीजंस की वजह से ही वो स्टार्टेड बिकमिंग एक्टिव, और उसने अपना वेट जो था वो अल्टीमेटली कम होता जा रहा था। When Tricky was at home, he was pampered by Mrs. Pumphrey. अब वो जब घर पे होता था तब तो उसे पैम्पर करके रखती थी मिसेस पम्फ्री, पर यहाँ पे तो उसे कोई पैम्परिंग नहीं मिल रही थी। ही वॉज गेटिंग ट्रीटमेंट एंड इन अ करेक्ट वे, तो वो कंटिन्यूसली रिकवर होता जा रहा था। He had a luxurious life when he was served with cream cake, chocolate and Horlicks. अब घर पे तो उसकी अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी, बहुत बढ़िया, उसको थोड़ी थोड़ी देर में खाना पीना सब मिल रहा था, बढ़िया बिंदास लाइफ चल रही थी। बट हियर इन हॉस्पिटल ही वॉज नॉट गेटिंग एवरीथिंग, बट व्हेन ही केम टू द डॉक्टर ही बिकेम ऑल राइट। अब वहां पे तो उसकी पूरी डाइट वाइट सब कंट्रोल हो गई थी, उसको टाइम पे खाना मिल रहा था, तो वो बिल्कुल सही होता जा रहा था। When she thanked Mrs. Pumphrey saw her active dog, she thanked the doctor and felt that it was a triumph of surgery. अब उसे जब ये चीज रियलाइज हुई कि मैं ओवर पैम्परिंग कर रही थी, ओवर फीड कर रही थी अपने डॉग को, और अब ये प्रॉपर ट्रीटमेंट से, प्रॉपर डाइट से पूरा बैलेंस्ड है, हेल्थ बैलेंस है, तो she thanked Mr. Harriot and she was enjoying her victory that was a triumph of surgery. So basically this is the whole story about a dog and his mistress, that is Mrs. Pumphrey. And who is the doctor here? James Herriot. Vet है वो, ठीक है। तो this is basically the whole story. So I hope you people have understood the story very well. अब थोड़े से question and answers discuss कर लेते हैं इसमें। Question answers देखो। Why is Mrs. Pumphrey worried about Tricky? क्यों उसकी वजह से वो इतनी worried थी? Why? Because He would not eat. वो कुछ खाना नहीं पसंद कर रहा था, वो अपना फेवरेट खाना जो था, he was not eating all those things. तो because of this reason, Mrs. Pumphrey was getting afraid. It had bouts of vomiting. उसको continuously vomiting हुए जा रही थी, back to back vomit करे जा रहा था वो, तो वो बहुत ज्यादा परेशान होने लग गई थी। It spent all its time lying on the rug and panting. Rug मतलब जहाँ पे जो डॉग है, इनको जहाँ पे फीड किया जाता है, तो बेसिकली he was all the time lying on his rug. rug मतलब एक कारपेट टाइप की चीज पे, and he was always panting. panting मतलब थका हुआ सा रहता था वो, हमेशा हाफता रहता था वो बहुत ज्यादा, breathing faster. तो he was continuously panting and he was not going for any walk, he was not doing any kind of exercise. तो इस वजह से Mrs. Pumphrey जो थी, she was getting afraid and she was worried about Tricky. ठीक है, तो ये सारे reasons थे। फिर what does she do to help him and is she wise in this? उसने क्या किया था फिर उसकी वजह से, उसको हेल्प करने की वजह से? She called out Mr. James Herriot. उसने उनको बुलाया। She took a nice decision. She took a wise decision in calling him because he treated this dog very nicely. तो क्या हुआ? The doctor suggested कि इसके जो हॉस्पिटलाइज करना होगा, इसकी जो ट्रीटमेंट है, बैलेंस डाइट है, वो सब मैं कहाँ से ऑपरेट करूंगा? ओनली थ्रू हॉस्पिटल। She swooned and wailed but let the dog go with the doctor. पहले वो रोई, इस वजह से परेशान रही कि मेरा डॉग जो है मुझसे अलग हो जाएगा, but then finally she allowed James Herriot to allow him to take him to hospital. Ultimately the doctor was successful in curing Tricky and finally he became recovered. He was all happy and fit. Who does I refer to in the story? I refers to what? The veterinary surgeon Mr. Herriot. अभी जो I है स्टोरी में, I took him to this, I have done this, whatever, जहाँ पे भी हम लोग I देख रहे हैं, तो this I stands for the vet, that is James Herriot. ठीक है, these are certain questions students which will be doing. देख लो एक बार इनको भी फटाफट। रीड एंड फाइंड आउट वाले क्वेश्चंस भी कुछ मैंने लिए हैं ताकि तुम लोग इसमें से भी एक बार आंसर्स फ्रेम करना सीख लो।
ठीक है, तो थोड़ा सा बड़ा है, यू कैन जस्ट रीड आउट. इज द नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस. जो नरेटर है ये इस ट्रिकी के जो मिस्ट्रेस है उसके बराबर है, रिच है या नहीं है, तो यू जस्ट टेक द हेल्प. नॉट क्लियरली स्टेटेड, यहाँ पे दे नहीं रखा है क्लियरली स्टोरी में हम लोगों को, बट कुछ कुछ इंस्टेंसेस हैं जिससे हमें ये चीज प्रूव हो रही है. कौन कौन से इंस्टेंसेस हैं, एक दो देख लेते हैं. मिसेस पम्फ्री while the narrator is able to provide with a warm loose box as a bed. उसको पूरा अच्छे से बेड में सब कुछ मिल रखा था. ट्रिकी हैड अ डे बेड एट नाइट बेड, ये सारी चीजें उसको मिल रखी थी, है ना. एंड ही व्हेन ही अराइव्ड टू टेक द डॉग विद हिम, मिसेस पम्फ्री हैज हर एंटायर स्टाफ विद हर डिस्पोजल टू ट्रांसफर. उसकी सारी चीजें उसने हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दी थी. ओके, ऑल द लग्जरीज. ऑन हियरिंग फ्रॉम द डॉक्टर अबाउट ट्रिकीज ग्रेजुअल रिकवरी, शी सेंड्स, इतने सारी चीजें उसकी रिकवरी के टाइम पे उसने सब चीजें भेज दी थी. उसको पूरा अच्छे से कुशनिंग कर रखी थी. ही वाज अगेन बीन पैम्पर्ड बाय मिसेस पम्फ्री. तो ये सारी चीजें हम लोग एक बार सेम विच वी हैव टेकन फ्रॉम द पैसेज ओनली और फ्रॉम द स्टोरी, तो वही सारी चीजें हम लोगों ने इसमें आंसर में लिख दी है. तो यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट इट और आंसर्स तुम लोग इसमें से फ्रेम कर सकते हो. यू कैन जस्ट टेक सम गाइडलाइंस. ओके, देन नेक्स्ट, हाउ डज ही ट्रीट द डॉग. कैसे उसने ट्रीट किया था. ही वॉज नॉट गिवन एनी काइंड ऑफ फूड बट ही वॉज जस्ट गिवन वाटर, plenty of water. He was mixing up, he was doing exercises. So these are certain things which he has done to treat the dog. तो वही सारी चीजें हैं. खाना नहीं दिया था, 2 दिन तक कंटिन्यूसली पानी दे रहा था उसको. He started showing interest in surroundings, mix up होने लगा था. See what all things, है ना. उसको ज्यादा नहीं मिल रहा था, टाइम टू टाइम फिक्स इंटरवल्स पे खाना मिल रहा था. तो ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू मेंशन इन दिस आंसर. फिर Why is he tempted to keep Tricky on as a permanent guest? अब वो क्यों टेम्पटेड था, क्योंकि मिसेस पम्फ्री ने अपनी सारी चीजें लगा दी थी उसकी केयरिंग में, उसकी पैम्परिंग में. तो ही वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड टू कीप दिस डॉग अगेन एज अ गेस्ट. ये सारी चीजें हम लोग ऐसे आंसर में से फ्रेम कर सकते हैं. सो यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट इट ऑल्सो. नाउ Why does Mrs. Pumphrey think the dog's recovery is a triumph? उसने ऐसा क्यों सोचा था कि इसकी जो डॉग की रिकवरी है वो ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है. Now this question is very very important students, क्योंकि चैप्टर के नेम पे बेस्ड है. तो क्यों उसे ऐसा लगा था कि डॉग की जो रिकवरी है वो ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है. Why she thought of Mrs. Pumphrey thought that the dog's recovery was a triumph of surgery because in 2 weeks, 2 हफ्तों के अंदर ट्रिकी ने बहुत अच्छे से रिकवर कर लिया था. He was losing weight, he was mixing up, he was doing exercises. So for all these things she realized that this is really a triumph of surgery. तो completely recover हो गया था, transform हो गया था वो. इतना जो ब्लॉटेड सॉसेज की तरह जो हो रहा था वो उसने completely transform कर लिया था अपने आप को एक hardcore muscled dog में. तो that was basically the triumph of surgery for Mrs. Pumphrey, है ना. When Tricky saw her, it leapt into her lap and licked her face. जब उसने उसको देखा, डॉग ने जब मिसेस पम्फ्री को देखा, तो he just went on to her and it licked her face. She was so excited that tears started rolling out of her eyes because वो इतनी अटैच थी उससे, उसको इतना पैम्पर करके रखती थी कि जब उसने देखा कि मेरा जो डॉग है पूरा अच्छे से रिकवर हो गया, तो she started crying. She declared Tricky's recovery as a triumph of surgery to express her happiness and to express the gratitude towards the doctor. तो इस वजह से उसे क्या लगने लगा था कि ये जो सर्जरी हुई है, जो ट्रायम्फ हुई है, विक्ट्री हुई है, that is just to show the concern and to show the happiness that her dog is happy and recovered now. तो बेसिकली ये पूरा स्टोरी का जो नाम था वो इस वजह से ही था कि ताकि वो ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर सके. She was feeling excited and happy. तो ये आंसर और ये चैप्टर का जो नेम है, इट इज टोटली जस्टिफाइंग द चैप्टर. ठीक है, तो दिस क्वेश्चन कैन बी फ्रेम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू कैन जस्ट मार्क इट डाउन. यू कैन टेक द हेल्प ऑफ this as it is language. You can frame in your own answer also. So students, that was the whole chapter based on triumph of surgery. Now in this video only we'll be stretching out one more chapter, that is the thief's story. So let's get started with that also. So students, what I was telling you कि we will be completing 2 stories, that is the triumph of surgery and the thief stories. So both chapters have been taken from your book Footprints Without Feet. So this is your second chapter, that is the thief's story. अब chapter start करने से पहले you might be thinking कि this story must be based on somebody who's a thief. तो एक thief की, एक चोर की story है ये. Now what is this thief doing and
how he has changed his mind on seeing or on being with a person who is very good. तो क्या होता है कि एक छोटे से बच्चे की कहानी है ये, हु इज अ थीफ, बहुत छोटी सी उम्र से वो बहुत ट्रेन हो चुका था इन स्टीलिंग थिंग्स, चोरी करने लग गया था, एंड ही वाज मास्टरिंग इन दैट, चोरी करता था, एंड ही वाज अर्निंग, एंड ही वाज अगेन एंड अगेन चेंजिंग हिज नेम. तो स्टोरी में बार बार अपना नाम चेंज करता है. क्यों? क्योंकि उसे चोरी करना होता था, तो ही वाज ऑलवेज गेटिंग स्केयर्ड कि मुझे कोई पकड़ नहीं ले. तो इस वजह से वो क्या करता था कि ही वाज अगेन एंड अगेन चेंजिंग हिज नेम. जैसे धूम 2 में, धूम 3 में देखा होगा ऋतिक रोशन, ये लोग सब अपने अपने नाम चेंज कर करके और बार बार कहीं ना कहीं चोरी करते थे. तो सेम थिंग दिस स्मॉल बॉय ऑल्सो, ही वाज ऑल्सो स्टीलिंग. बट व्हाट हैपेंड, वन डे he came in contact with a boy or a man who was 25 years old and whose name is Anil. तो क्या होता है स्टूडेंट्स कि ये उसके साथ रहने लगता है, वो उसको थोड़ा सा पढ़ाना लिखना सिखाता है और उसकी कंपनी को वो इंजॉय करने लग जाता है. और उसके जो काम होता था थोड़े बहुत छोटे मोटे अनिल का, तो वो उसको उसके थोड़े बहुत पैसे दे देता था, उसको खाना दे देता था टाइम पे. ही वाज स्लीपिंग विद हिम, ही वाज लर्निंग थिंग्स फ्रॉम हिम. तो सडनली क्या हुआ, उसकी ये सारी चीज़ों से, उसकी जो अच्छाई थी अनिल की, इस हरी सिंह को बहुत ज़्यादा हर्ट करने लग गई थी, अफेक्ट करने लग गई थी. बट स्टिल जब वो थीफ था तो उसने सोच लिया था कि मुझे चोरी तो करना ही है. तो एक दिन क्या होता है, जब अनिल पैसे लेके आता है और वो अपने पैसे पिलो के नीचे या मैट्रेस के नीचे कहीं रख देता है, तो वो क्या करता है, उसने डिसाइड कर लिया होता है कि आज मैं रात को पैसे लेके एंड आई विल गो. तो उसने सोच लिया था कि आज तो मैं चोरी करूंगा ही सही और मैं यहाँ से चला जाऊंगा. तो ही डिड दिस थिंग. जब अनिल सो रहा होता है तो वो अपने पैसे उठाता है उसके, अनिल के, एंड ही जस्ट वेंट अवे टू रेलवे स्टेशन. रेलवे स्टेशन भी चला जाता है, बट अगेन एंड अगेन ही वाज थिंकिंग ऑफ अनिल. उसे बार बार अनिल का ख्याल आता होता है कि ये इंसान जो था, इसने मुझे इतने अच्छे से पढ़ना लिखना सिखाया, मुझे खाना दिया टाइम पे, मुझे पैसे देता था ताकि मैं अपना खाना खा सकूं या घूम सकूं या मूवी देख सकूं, और इसके बाद भी मैंने उसके पैसे जो है वो चुरा लिए. तो उसे बुरा लग रहा था इस चीज़ का बार बार. एंड इट वॉज रेनिंग ऑल्सो, बारिश होने लग जाती है, तब भी वो रेलवे स्टेशन पे बैठा रहता है. और उसे सडनली ये चीज़ रियलाइज होती है कि ये जो चीज़ वो कर रहा है वो गलत है और उसे वापस उसके पैसे लेके चले जाना चाहिए. ठीक है, अब वो जब वापस चले जाता है, डिसाइड कर लेता है कि मैं घर जाऊंगा, वापस पैसे जो हैं वो रख दूंगा. तो उसे ये चीज़ रियलाइज होती है कि अब मैं अगर घर जाऊंगा तो अनिल मुझे पकड़ लेगा या मुझे वो समझ लेगा कि मैंने चोरी करी थी. बट स्टिल ही हैज़ टेकन द स्टेप कि मैं जाऊंगा और अपनी चीज़ जो है वो कन्फेस कर लूंगा, भले आगे जो भी हो मैं देख लूंगा. तो वो घर जाता है पैसे लेके, बारिश में भीग जाता है तो नोट जो हैं वो भी भीग जाते हैं थोड़े से. अब वो घर पे लेके जाता है. अनिल जब सुबह चेक करता है, पैसे वो वहीं के वहीं रख देता है जहाँ से उसने चुराए थे. ठीक है, पर जब वो सुबह देखता है अनिल की जो नोट है वो गीले हो गए हैं, अनिल को जब ये चीज़ पता लग जाती है कि हरी सिंह ने उसके पैसे चुराने की कोशिश की है, वो लेके भाग गया था, इसके बाद भी अनिल ने उसको कुछ भी नहीं बोला, एंड ही जस्ट वॉज बीइंग वेरी नाइस टू हरी सिंह. तो ये चीज़ जो थी हरी सिंह को बहुत अफेक्ट करी थी कि इसने मुझे इतने अच्छे से ट्रीट किया और उसके बाद भी मैंने इसे क्या किया. तो दिस इज बेसिकली द होल स्टोरी ऑफ हरी सिंह, तो विच विल बी स्टडिंग अबाउट इन दिस लेसन. ये पूरी समरी है, पूरी थीम है. अब इसको अपन थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ लेते हैं इन द वे ऑफ स्टोरी. ठीक है, Anil was a young writer. Anil जो है, he was a writer and he was a very good man. He was living his life very carelessly. He was writing for the magazines and earning the money to run his life. अब ये जो अनिल है students, he was living his life very carelessly. बहुत carelessly वो अपनी लाइफ को जो है वो जी रहा था. He was writing for the magazines and he was earning. अब वो इतना कमा लेता था कि उसका खुद का काम जो है वो चल जाता है. ठीक है, वन डे अनिल वॉज वॉचिंग द रेसलिंग मैच. एक दिन क्या होता है कि वो रेसलिंग मैच देख रहा होता है और हरी सिंह जो है, हु वॉज अ थीफ, हु वॉज अ स्मॉल बॉय, ही केम, ही न्यू हाउ टू मेक द अननोन पर्सन अ फ्रेंड. अब हरी जो था, ही वॉज वेरी मच गुड एट मेकिंग अननोन पर्सन अ फ्रेंड. अब जो चोर लोग होते हैं, आप लोगों को पता होगा स्टूडेंट्स, कि उनमें एक ट्रिक होती है कि वो दूसरे लोगों से बहुत अच्छे से बात करते हैं, फ्रेंडली मैनर में बात करते हैं, ताकि सामने वाले को बिल्कुल पता नहीं लगे कि हम लोग चोर हैं या कुछ है. तो he was very good at making friends. तो same thing he did, he used an old formula to flatter the person. उसने बटरिंग करना शुरू कर दिया और उसकी तरह से बात करने लग गया, अच्छे से फ्लैटरिंग करने लग गया उसकी बहुत ज़्यादा, और he impressed अनिल. उसने इम्प्रेस कर लिया था अनिल को. हरी stayed with अनिल. अब
जब इन दोनों की अच्छी सी दोस्ती हो गई थी, अनिल उससे इम्प्रेस हो गया था, तो हरी जो है ही स्टार्टेड लिविंग विद अनिल, अनिल के साथ रहने लगा। अनिल प्रॉमिस्ड हिम दैट ही वुड टीच हिम हाउ टू राइट एंड ऐड नंबर्स। अब अनिल ने उसे प्रॉमिस कर लिया था, क्योंकि वो छोटा बच्चा था और अनिल जो था वो बहुत काइंड इंसान था, तो ही हैज प्रॉमिस्ड कि आई विल टीच यू नंबर्स, आई विल टीच यू हाउ टू राइट। क्योंकि हरी जो था उसने आज तक कभी पढ़ाई लिखाई की नहीं थी, ही वॉज जस्ट स्टीलिंग एंड ही वॉज बिकमिंग अ थीफ। तो वो तो हमेशा चोरी चकारी में ही लगा रहा था, पढ़ाई लिखाई उसने कभी की नहीं थी। जब अनिल को ये चीज पता लगी तो ही सेड कि आई विल टीच यू हाउ टू राइट, आई विल टीच यू हाउ टू ऐड, है ना। He also taught him how to cook tasty food. उसने उसको खाना बनाना भी सिखाया, तो हर तरह से उसको गाइड करे जा रहा था, उसको ट्रेन कर रहा था। डेली हरी सिंह वॉज गोइंग टू बाय डेली नीड्स एंड हैड प्रॉफिट ऑफ 1 रुपी डेली। अब वो रोज रोज चीजें खरीदता था, बेचता था, और उसका जो उसको प्रॉफिट होता था 1 रुपए का, वो अनिल बोल देता था कि ये चीज तुम अपने पास रखो और इसका जो प्रॉफिट है उससे तुम कुछ भी करो, यू कैन गो वॉच अ मूवी, यू कैन हैव फूड और यू कैन डू एनीथिंग। अनिल न्यू बट ही डिड नॉट माइंड इट। उसको ये चीज पता थी कि प्रॉफिट कमा रहा है, पर स्टिल ही वॉज नॉट सेइंग एनीथिंग टू हरी, और उसको वो 1 रुपए जो थे डेली के दे देता था। बोथ वर लिविंग टुगेदर हैप्पीली। दोनों जो थे एक दूसरे से बहुत अच्छे से रह रहे थे, दे वर बोथ हैप्पी। 1 month passed, हरी सिंह डिड नॉट परफॉर्म हिज बिजनेस। अब बिजनेस हियर रेफर्स टू थीफ और चोरी। अब 1 महीना हो गया था, उसने पूरा सोच रखा था कि मैं इसके साथ चोरी करूंगा, इसके घर पे चोरी करूंगा, लेकिन वो एक मौके की तलाश में था कि जैसे ही मुझे मौका मिलेगा और मैं उस टाइम चोरी कर लूंगा। पर 1 महीना हो गया था दोनों को साथ में रहते रहते, पर हरी ने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया था जिससे मतलब वो चोरी मोरी का कुछ उसने सोचा नहीं था। तो बिजनेस हियर रेफर्स टू स्टीलिंग। उसने 1 महीना हो गया था पर उसने अभी तक चोरी नहीं करी थी। फिर क्या हुआ आगे, आप समराइज कर लेते हैं इसको। One day he saw Anil had bought a bundle of notes. एक दिन उसने क्या देखा कि अनिल बहुत सारे नोट्स लेकर आया है, bundle of notes. He saw him to put them under the mattress. अब उसने क्या किया, अनिल जब पैसे लेके आया तो उसने अपनी मैट्रेस के अंदर उसको रख दिया नोट्स को। As Hari saw the bundle of notes, his evil spirit awakened in his mind and he decided to rob Anil that. अब पैसे दिख गए उसको, चोर को पैसे दिखेंगे तो ऑब्वियसली वो चोरी करने की ही सोचेगा। उसने अपना दिमाग बना लिया कि हाँ भाई आज अच्छा मौका है मेरे पास, आज मैं पैसे लेके एंड आई विल रन अवे। तो उसने सोच लिया था कि आज रात को जैसे ही अनिल सोएगा और मैं पैसे लेके यहाँ से रवाना। एंड ही डिसाइडेड टू रॉब अनिल दैट नाइट। आफ्टर टेकिंग डिनर अनिल स्लेप्ट पीसफुली। अब अनिल को तो ऐसा कुछ पता था नहीं कि हरी के दिमाग में चल के आ रहा है, तो अनिल ने क्या किया, ही जस्ट टुक हिज डिनर एंड ही स्लेप्ट पीसफुली। सो गया वो आराम से। हरी कुड नॉट स्लीप। हरी तो सो नहीं सकता था, ही वॉज जस्ट वोक अप। जगा हुआ था ताकि अनिल अच्छे से गहरी नींद में सो जाए और वो पैसे लेके वहां से भाग जाए। He crept to the bed and slipped his hand under the mattress. अब वो धीरे धीरे रेंगते रेंगते, जब अनिल को अच्छे से नींद लग गई थी तो वो धीरे धीरे गया अनिल के बेड के पास में और अपना हाथ जो था मैट्रेस के वहां डाला। He found the notes and ran away on the. मिल गए उसको रोड पे, उसको पैसे मिल गए मैट्रेस के नीचे, निकाले उसने वहां से, एंड ही जस्ट स्ट्रेट अवे रैन ऑन टू द रोड। हरी सिंह मेड अप हिज माइंड दैट ही वुड डायरेक्टली गो टू द रेलवे स्टेशन एंड वुड कैच द लखनऊ एक्सप्रेस। अब उसने अपना दिमाग बना लिया था कि मैं यहाँ से पैसे लेके रवाना हो जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ रुका तो हो सकता है कि अनिल मुझे कल पकड़वा दे या पुलिस से पकड़ा देगा, जो भी है। तो मैं यहाँ से सीधा जाऊंगा रेलवे स्टेशन और लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन लेके आई विल गो। He thought that Anil would not catch him if he ran away from the city. अब उसने सोच लिया था कि सिटी से अगर बाहर जाऊंगा तो अनिल मुझे पकड़ नहीं पाएगा, ठीक है। तो he has decided कि I will move away from this place. Hari Singh reached the railway station. Lucknow express was about to go. अब वो जैसे ही लखनऊ रेलवे स्टेशन पहुंचा तो लखनऊ एक्सप्रेस वहां पे खड़ी हुई थी, तो he was ready that I will go into this train, I will move away from this city. तो उसने अपना माइंड जो था वो पूरा अच्छे से बना रखा था। Then what happened next, गया कि नहीं गया वो। Suddenly the good spirit called him. अब एकदम से जैसे वो ट्रेन बोर्ड करने लगा था, स्टूडेंट्स ट्रेन में चढ़ने लगा था वो, तो एकदम से क्या हुआ, उसकी जो गुड स्पिरिट थी, उसकी जो अंदर की अच्छी आत्मा थी, उसने एकदम से उसको आवाज लगाई कि ये जो तुम कर रहे हो ये बहुत गलत है। किसी इंसान ने तुम्हारे ऊपर इतना ट्रस्ट किया है, he has trusted you blindly and you are doing what, you are cheating on him, तो that is very bad, मत करो ये, है ना।
तो इनर वॉइस टोल्ड हिम टू नॉट टू बिट्रे द फेथ ऑफ अनिल। अब उसकी जो अंदर से आवाज आ रही थी, अंतरात्मा होती है ना स्टूडेंट्स, कुछ अगर हम गलत कर रहे होते हैं तो हमें अंदर से लगता है कि नहीं यार ये नहीं करना चाहिए, तो सेम थिंग हैपेंड एंड हिज इनर वॉइस टोल्ड हिम नॉट टू बिट्रे, नॉट टू चीट ऑन हिम। ठीक है, तो बिट्रे हियर रेफर्स टू चीट। देन द ट्रेन वॉज मूविंग बट हरी डिड नॉट डेयर टू कैच इट। अब ट्रेन वो देख रहा था सामने से कि ट्रेन जा रही है, बट उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसको बोर्ड कर सके, उसमें चढ़ जाए। ओके, ही वॉज वॉचिंग इट गो। ही वॉज रिमेम्बरिंग द इनोसेंट फेस। अब उसको बार बार अनिल का ख्याल आ रहा था, वो अनिल का फेस जो था वो रिमेम्बर कर रहा था, एंड ही वॉज फीलिंग बैड। When Hari Singh thought that what would Anil think about him, Anil would not worry about the money, but he might feel bad that a man had broken his faith. अब उसे क्या लग रहा था कि अनिल इतना अच्छा इंसान है तो उसे इस चीज का बुरा नहीं लगेगा कि उसके पैसे कोई चुरा के ले गया, बट इनफैक्ट उसे क्या लगेगा कि जिस इंसान पे मैंने इतना ट्रस्ट किया, 1 महीने तक खाना दिया, उसको अपने साथ रखा, उसको पढ़ाया लिखाया, ही हैज ब्रोकन द ट्रस्ट। तो उसे इस चीज का बहुत बुरा लग रहा था, एंड ही वॉज जस्ट नॉट एबल टू डू एनीथिंग। There was conflict in the mind of, अब उसके दिमाग में कंटिन्यूसली कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था कि मैं क्या करूं ऐसा जिससे मैं सुकून में आ जाऊं। तो ही वॉज कंफ्यूज्ड, ही डिड नॉट वांट टू लूज फेथ ऑफ। अब उसने सोच लिया था कि मैं अनिल का जो फेथ है, अनिल का जो ट्रस्ट है वो नहीं तोड़ूंगा। ठीक है, तो फेथ मीन्स ट्रस्ट। Because he knew that Anil was a simple man, moreover, Anil was teaching him how to write and add numbers, which could change his. Ab he has thought of कि now this Anil, he is treating him so nicely. He is telling him, he is guiding him to teach and how to write and how to add. और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ? I am doing cheating on him. I am breaking his heart. I am breaking his faith. तो मुझे ये चीज नहीं करना चाहिए. I should go back home again and I should apologize. अब वो पढ़ाना लिखाना उसको सिखा रहा था तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर वो पढ़ लिख जाता अच्छे से तो वो हो सकता है आगे उसकी लाइफ जो है वो चेंज हो जाए और वो जो चोरी चकारी कर रहा है वो सब छोड़ दे। तो वो उसे इतनी अच्छी चीज बता रहा था, उसे इतना अच्छा इंसान बना रहा था, और उसने क्या किया? ही हैज चीटेड और ही हैज स्टोलन हिज मनी, है ना। ही लेफ्ट द रेलवे स्टेशन। अब ट्रेन वहां से चली गई, वो खुद भी वहां से आ गया। He came to the मैदान and sat down on the bench. अब वो वहां से तो आ गया छोड़ के, and he just went on to the station. Just then heavy rain started. और वो जब वहां से बैठ गया, he was just sitting on a मैदान, तो बारिश आने लग गई थी, and he was still sitting in that rain. It was the month of November. नवंबर का टाइम था, बहुत तेज बारिश होने लग गई थी, and he was still sitting in that rain. He felt more uncomfortable as he had cheated an innocent. उसे बार बार ये चीज रियलाइज हो रही थी कि I have cheated on an innocent person. जिसने मेरे ऊपर इतना blind trust किया, I have cheated on him. His shirt and pajamas stuck to his body because it were wet due to, अब उसके जो कपड़े थे बारिश के भीगने की वजह से पूरे चिपक गए थे उसकी बॉडी से. Then he went to the clock tower. Then what happened? He decided that I will go to clock tower and I will return his money as soon as possible. ठीक है, तो सडनली ही रिमेम्बर्ड हिज नोट्स. उसने रिमेम्बर किया कि मेरे पास जो है अनिल के नोट्स भी हैं, वो भी मेरे कपड़ों में भीग जाएंगे. तो सडनली ही रियलाइज कि आई एम हैविंग द नोट्स. ही सर्च फॉर इट एंड फाउंड दैट ऑल द नोट्स आर वेट. अब बारिश में भीग रहा है, उसके कपड़े भीग रहे हैं, तो ही फाउंड आउट दैट हिज नोट्स आर ऑल्सो वेट. He crept again and secretly put back money under the mattress. वो वापस से धीरे धीरे पहुंचा अनिल के घर, and finally he kept the money in the mattress. The next day when Anil woke up, prepared tea for Hari and himself. Next day क्या हुआ? Usually अनिल को कुछ ऐसा पता नहीं था कि रात में क्या हुआ है. He just woke up, he prepared tea for himself as well as for Hari. He handed over 50 rupee note to Hari and told him that he would be regularly be paid. Now then what happened? He has decided that from now on I will be paying you 50 rupees per month. He took the note and found that it was still wet. अब हरी ने जब ये चीज हाथ में लेके देखी, जब अनिल ने उसको पैसे निकाल के दिए, out of that note he has given him a 50 rupee note and he found out कि जो notes हैं वो अभी भी गीले हो रहे हैं. मतलब अनिल को ये चीज पता लग गई है कि I have cheated on him, I have stolen the amount, still he is being very nice to me. He understood that Anil knew about the last night episode. अब उसको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई थी कि लास्ट नाइट के बारे में अनिल को पता है, उसके बाद भी मुझे कुछ बोल नहीं रहा है, and he is been still nice to Hari. Okay? So you can imagine how good this person might be. अब थोड़े से क्वेश्चन एंड आंसर देख लेते हैं फिर.
I hope you have understood the story of this thief Hari Singh. His name is not the correct one because he was again and again changing his name. ठीक है, तो आप क्वेश्चन एंड आंसर्स देख लेते हैं. Who does I refer to in the story? I here refers to the thief. thief या फिर हरी सिंह कह लो. ठीक है. Now what is a very successful hand? Means stealing and robbing people. क्योंकि वो इतना master हो गया था, he has become master in robbing and stealing people. That means successful hand. ठीक है. तो these are certain small questions. अब next, what does he get from Anil in return from his work? He was not being paid, but उसे in turn मिल क्या रहा था? He was getting his meals and he was getting a place to stay. तो देखो, he did not know how to cook, तो उसको खाना मिल रहा था. He was getting a place to live on. Now, Hari went on to buy the daily supply. He would make a profit. 1 रुपए भी उसको मिल रहे थे, खाना भी मिल रहा था. He was being living also. तो these all things he was getting from Anil. फिर next क्या हुआ students? Next questions थोड़े से. How does the thief think Anil will react? उसने कैसे सोचा था कि अनिल उससे कैसे रिएक्ट करेगा when he will come to know कि I have stolen the amount. तो उसने सोचा था कि he will be feeling bad, he would not be want, जब उसे पता लगेगा तो he will not regret for the amount of, for the loss of money, but he will regret for the loss of faith or loss of trust. What does he say about the different reactions of people when they are robbed? उसने ये चीज सोचने लग गया था कि how these people might be thinking that who are being robbed, जिनकी चोरी हो जाती है उनको कैसा कैसा लगता होगा. तो in his short career, छोटा सा उसका करियर था because he was a small boy, उसने ये चीज बहुत अच्छे से समझ ली थी कि how these people are reacting. तो he said that the greedy man showed fear, the rich man showed anger and the poor man showed acceptance. सब अलग अलग टाइप के लोगों को उसने चोरी कर रखी थी, तो उसने देख रखा था और एक परसेप्शन बना रखा था कि जो पुअर लोग हैं अगर उनकी चोरी होती है तो दे विल एक्सेप्ट दिस थिंग. इफ द ग्रीडी मैन आर बीन रॉब्ड दे विल शो फियर, उनके बीच में डर हो जाता था. इफ द रिच मैन आर बीन रॉब्ड then they will be showing anger कि हमारे जो पैसे हैं वो चोरी हो गए. and if it is been about the poor people then poor people will be accepting. तो ये चीज उसने स्टडी कर ली थी about different reactions of people who are being robbed. इसके बाद does Anil realize कि he has been, yes he has realized because when seeing on the notes that they are wet he has realized कि हरी सिंह ने कोशिश की है to rob his house or to rob his money but still he has not said anything. क्योंकि पूरे डैम्प हो रखे थे, वो नोट जो थे वो पूरे भीग चुके थे और उसे पता लगा था कि रात में बारिश हुई थी, तो ऑब्वियसली this Hari Singh has tried to rob the money. So these are certain questions students which can be framed from this chapter. So I hope you people have understood the story very nicely. So in this lesson students we have covered the 2 stories, that is the Triumph of Surgery as well as the thief story. So I hope you people have understood the story very well. Thank you and have a nice day. So students, that was the whole story about a tiger in the zoo. If you have understood the poem nicely, please do like, subscribe our channel. Thank you and have a nice day.